Recording. Welcome everyone. If you have any questions, I would request you all to write down in the chat. If there is something you are unable to understand or are confused about it, you are more than welcome to write in the chat and I'll do my best to address it then and there. So we'll wait for 4 more minutes and then we'll start. Since this session is being recorded, you can ask for the recording. Usually I upload my recordings on my YouTube channel, so that is easily accessible. As soon as the video converts, I would be able to share it there. Okay, by which name your YouTube channel is? My name is, the name of my channel is Learn Easily with Shirinity. Okay. Yes. Ma'am, can you please tell the name of your YouTube channel again? It is Learn Easily with Shirinity. I'll write it down in the chat also. So once again, Assalamu alaikum everyone, and I would like to welcome you on behalf of myself and Spelt to this session today. If you have any questions, you are more than welcome to post it here in the chat so that we can address them along the way. I prefer to have a Q&A before starting the session and then at the end of the session. So if you have any questions, you can put down those questions also in the chat or write it down with you and mention them at the end of the session, because sometimes your questions are already answered within the session only. तो जिस वक्त सेशन चल रहा होता है उस वक्त उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो मैं अपने ही लोड करूंगी, बाकी स्पेल्ट अपनी तरफ से किस तरह से शेयर करते हैं वो साथ ही बता देंगे. वालेकुम अस्सलाम. कि वीडियो बड़ी होती है, 1 घंटे का सेशन होगा ना तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर वो व्हाट्सएप के ऊपर शायद ही अपलोड हो. वो फिर या तो वी ट्रांसफर से आपको मिल सकेगी, उसके लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा. मेरा नंबर आखिर में मेंशन होगा, व्हाट्सएप नंबर, वहां से भी आप राब्ता कर सकते हैं. ठीक है. सो आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ओनली बिकॉज आई एम नॉट इन कराची एट द मोमेंट. I'm in Turkey. So even if you call me on the number, cell number,
I would not be able to receive the call. So WhatsApp is the best option. And sure. Thank you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ACD webinar number 447 of SPELT. And today our presenter is Shiri Khan. Shiri Khan is a certified master trainer and has assisted young learners, educated parents, and trained teachers in her social entrepreneurship initiative, now over 25 years old. She has also compiled 10 ebooks on self-development, English and Urdu languages, arts, time management, etc. She treats herself as a lifelong learner and never misses any new knowledge learning opportunity. Okay, welcome to you all, and please start, Ms. Shiri. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा जी, सबाहत आप प्लीज अब मैनेज कर लीजिएगा कि जो भी लोग एंटर होना चाह रहे हैं, ठीक है, दे आर वेटिंग इन द रूम. टीचिंग लैंग्वेज मेड इजी. इस टॉपिक को सुनकर आपको क्या लगता है? सबसे पहला सवाल. इंग्लिश और उर्दू में मिक्स बात करूंगी, कोशिश करूंगी कि मिंग्लिश ना हो, लेकिन ये कि बहरहाल आपके जो भी सवालात हैं सबसे पहले वो मैं लेना चाहूंगी, ताकि उन चीज़ों को साथ के साथ सेशन के दौरान अगर एड्रेस कर लिया जाए तो उसमें आपको भी आसानी होगी. ठीक है जी. तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें ये देखनी है कि आपके सवालात क्या हैं. ठीक है, आप अपने सवालात बताइए. चैट में मैं इंतज़ार करूंगी. ठीक है. Do we have any questions? अभी तक चैट में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया. चलें फिर लेट्स स्टार्ट. सो इन तमाम अरसे में मतलब तकरीबन इंग्लिश सिखाते हुए और इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को हेल्प करते हुए मुझे 30 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और अपने बच्चों को भी सिखाते हुए माशाल्लाह 28 साल की उम्र से लेके 13 साल की उम्र तक हैं. ये कुछ यूनिवर्सिटी पास कर चुके हैं, दूसरी टीम छोटी है. तो जैसे जैसे बच्चों को स्ट्रगल्स आते गए, उन स्ट्रगल्स को कैसे रिजॉल्व किया, उसका खुलासा है जो कि आज आपके सामने पेश किया जा रहा है. ठीक है जी. तो कोई भी आपके सवालात हो, फील फ्री टू पोस्ट इट इन द चैट. अच्छा, एक सवाल आया है खतीजा वाहिद का. Being a teacher, what are the strategies that we need to use when we are teaching any language? Excellent question. This session is all about the strategies because basically I'm an NLP based performance boosting strategist. So all my tips and all my consultancy, everything revolves around strategies only. ठीक है. So आपको strategies इसमें ही मिलेंगी. सबसे पहले जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना है हमें स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आएगा तो वो फिर समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है. और हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं या टीचर्स भी जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं और लिटरली वो रो रहे होते हैं कि हम इनको क्या करें इस एज में और इस स्टेज में, हम किस तरह से इनको. हमारा हेडफोन जो है प्लीज म्यूट कर लीजिए. थैंक यू. अच्छा जी. सो व्हाट हैपेंस इज
माशाल्लाह। कि सबसे पहले जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की हमें जरूरत होती है ताकि हमारे बच्चों को बेहतर समझ में आए कि हम उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं। हमें बेशक सिलेबस खत्म कराना होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन साथ के साथ जो चीज अहम होती है वो ये होती है कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उनके क्लियर नहीं है, जिसमें कि वो दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यूजुअली टेंसेस का मसला होता है। दूसरा जो मसला होता है वो ट्रांसलेशन में होता है, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी जबान है, अंग्रेजी नहीं है। बेशक के हम 8-9 सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश में, इसके बावजूद बच्चे और यहाँ तक कि टीचर्स, हम लोग खुद भी उर्दू में सोचते हैं फिर इंग्लिश में लिखते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में सोचते हैं और जब वो उर्दू में लिख रहे होते हैं तो वो बेइंतहा स्ट्रगल करते हैं। लिहाजा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जरूरी है, और उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि पिन पॉइंट किया जाए कि कंफ्यूजन एग्जैक्टली कहाँ है। ठीक है ना, ये कह देना कि आजकल के बच्चे तो यूं हैं, बड़े शैतान हैं, ये है वो, दैट डज नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। क्योंकि बहरहाल वो 1 साल के लिए हमारे पास हैं और हमें उन्हें सिखाना है, मिनिमम 1 साल के लिए तो होते ही। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं रूल नंबर 1 के कि इसको हमें अच्छी तरह से क्लैरिफाई करने की जरूरत है। सो फाइंड एंड सॉल्व योर स्टूडेंट्स नीड्स, कि उन्हें एग्जैक्टली क्या जरूरत है। 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, मतलब 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं। थोड़े से स्टूडेंट्स 1/4 या 1/8 जो है क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अबव एवरेज होते हैं, और इसी तरह से 1/4 या 1/8 चंद एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिलो एवरेज होते हैं। लेकिन जो मेजर चंक होता है वो एवरेज स्टूडेंट्स का होता है। अब ये 3 वैरायटी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि हमें साथ लेके चलना है, और हमें उनको मतलब जो बेहतर पढ़ने वाले होते हैं वो फिर दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, तो एक बडी सिस्टम क्रिएट करके उन्हें लेके चलना होता है। ठीक है जी, या इस यहाँ तक कोई सवाल है? जी आमिर, आपका कोई सवाल है चैट में? ओके, आई थिंक इट्स रिटन इन द चैट। नो साउंड, वॉल्यूम प्रॉब्लम। इंटरनेट इशू जिनका होता है उनको वॉल्यूम का प्रॉब्लम होता है। हाउ टू टीच अ लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। तो बिगिनर्स के लिए भी अगेन आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। एकदम से उनको सारे ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली जो टेंसेस हैं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और वगैरह वगैरह वगैरह, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है बच्चों को समझने में। लिहाजा स्टेप बाय स्टेप उसको समझने और समझाने की जरूरत है। ठीक है जी, तो आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने कि अब्बास हुसैन साहब का IMLS वाला कोर्स किया हो? क्योंकि IMLS जब मैंने सीखा था 2011-2012 में, तो MTC का प्रोग्राम होता है। आप लोगों में से जिसको भी मौका मिले वो जरूर इनका, अब्बास साहब का ये प्रोग्राम जरूर करें। इसमें मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ, समहाउ स्लाइड शो में दिख नहीं रहा है, तो लेट मी चेक दिस आउट। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? IMLS की स्क्रीन नजर आ रही है? मैं इसको दोबारा से करती हूँ। ओके, अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जनरल स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि उस स्क्रीन पे जो भी चीज हो वो आपको दिखे। स्लाइड ब्लैंक आ रही थी ना? अच्छा,
IMLS का मतलब है इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। आप जो भी लैंग्वेज बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसको एक इंटीग्रेटेड अंदाज में सिखाएंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। इससे मुतालिक कोई सवालात के जवाब चाहिए हो तो आप बाद में भी व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्किल्स हमें सीखनी हो या कुछ भी हम सीखना चाह रहे हो उसके लिए 3 हिस्से होते हैं, यानी 3 मरहलों में हम सीखते हैं, और वो मरहले हैं इनपुट, ट्रांजिशन और आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट से क्या मुराद है, इनपुट से क्या समझ में आता है? इनपुट के बारे में बता सकते हैं, इनपुट क्या होती है? एफर्ट्स, ओके, व्हाट एल्स? Input means what we teach, yes. Okay. तो इनपुट, जब हम कोई चीज, जैसे एक ग्लास है उसमें हम पानी डालेंगे तो हमें पानी मिलेगा ना। अगर एक पैमाना खाली है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं। काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज। आमना, काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज। एडमिन प्लीज लुक इनटू द मैटर, क्योंकि बाकी सबको डिस्टरबेंस होती है। जब आपके पास एक चीज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, फिर आप उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे कि प्ले डो होता है ना, हाथ में आप उसको लेते हैं, उसको फैलाते हैं, लंबा करते हैं, उसमें से शेप्स काटते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर आपको उसका इस्तेमाल आता है। ठीक है, और जब इस्तेमाल आता है तब ही आप आउटपुट दे पाते हैं। ठीक है, जब अगर इनपुट नहीं होगी तो आउटपुट कैसे होगी? Activates student schema, yes. How to wake up students in the last unit of language class? Good one. तो वो इसी तरह से होता है कि जब उनको एंगेजिंग तरीके से सिखाया जाएगा, रट्टू तोता समझ के नहीं या ट्रेडिशनल अंदाज में नहीं सिखाया जाएगा, तभी वो बेहतर सीखेंगे। क्योंकि आज का लर्नर जो है वो, उसके पास यूट्यूब का एक्सेस है, उसके पास टिकटॉक, ये वो बहुत सारी चीजों का एक्सेस है, तो उसके लिए बोरिंग अंदाज में सीखना इंतहाई मुश्किल है, मतलब एंगेज करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। So the teacher needs to equip themselves with up-to-date methods and skills अपनी sharp करनी जरूरी है। ठीक है, इनपुट आप किस तरह से देते हैं? When you ask questions or when you ask the children to make predictions. ठीक है, जैसे आपने पिक्चर दिखाई और आपने उनसे कहा कि ये क्या चीज है, what is this, how do you use it, what can you do? इनपुट लेने का तरीका जो है वो 2 है, एक है लिसनिंग, दूसरा है रीडिंग। More than 70% of learning happens with listening. मेरी अम्मी टर्किश हैं और उनको इंग्लिश मूवीज बहुत पसंद थी, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। तो हम लोगों का काम होता था कि हम उस मूवी को सुने, और कभी वेस्टर्न मूवीज बहुत ज्यादा शौक से देखती थी, तो उसमें अलग किस्म का एक्सेंट होता है, तो हमें बहुत सारे एक्सेंट्स को बार बार सुनना। और उस जिस जमाने में हम लोग मूवीज देखते थे पीटीवी के ऊपर सैटरडे नाइट को या जो भी, तो उसमें रिवाइंड फॉरवर्ड तो होता नहीं था, तो उसको ध्यान से हमें सुनना पड़ता था। तो उस लिसनिंग की वजह से हमारी इंग्लिश बेहतर हुई, लेकिन ये सिर्फ आधी लर्निंग होती है लिसनिंग की, लेकिन बहरहाल इसका इम्पैक्ट जो है वो 70% पड़ता है। तो जब आपको एक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है तो सिर्फ टीचर की इंग्लिश के ऊपर रिलाई करना कि या स्कूल पे रिलाई करना काफी नहीं है। बच्चों को एनकरेज करने की जरूरत है। आप बेशक थोड़ी सी रिसर्च करके टीचर वो लिंक्स दें, खास तौर पर जैसे टेड टॉक्स हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि उसमें कंटेंट भी अच्छा होता है, मुख्तसर होता है, 15 मिनट का, और बेहतर से बेहतर सीखने को मिलता है। तो बेटर द लिसनिंग इज, द बेटर इज द इनपुट, एंड ऑब्वियसली द इट विल इम्पैक्ट द आउटपुट एज वेल। क्योंकि लिसनिंग में कान आदी हो जाते हैं करेक्ट इंग्लिश के। ठीक है, सही
जुमला साजी कैसे होगी, सही तौर पर वो पूरा मतन कैसे बनेगा, वो सारे कान उसके आशना हो जाते हैं। तो अगर वो कभी खुद भी गलत लिखे तो जब वो उसको पढ़ता है स्टूडेंट, तो फिर उसको समझ में नहीं, देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस, चाहे उसको 100% ग्रामर नहीं भी आती हो तब भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। लिसनिंग के अलावा है रीडिंग, और इसी तरह से बच्चों को एक अच्छा रीडर बनाने के लिए और रीडिंग में दिलचस्पी दिलाने के लिए टीचर खुद भी रीडिंग करे, बच्चे देखें कि टीचर भी रीडिंग कर रही है, और वो टीचर पेरेंट भी हो सकता है, तो ही फिर बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे पेरेंट्स को किताबों से इश्क था, हम लोगों को भी इश्क हुआ किताबों से, और हमारे यहाँ किताबें उबलती हैं घर में बहुत सारी, और फिर हम जाके फिर बुक से एग्जीबिशन से जाके और ले आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स पता चलते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो है वो जुमले पता चलते हैं, और उसमें आपकी लर्निंग बेहतर होती है, वोकैबुलरी बेहतर होती है, ठीक है। अब लिसनिंग और रीडिंग ऐसे ही है कि आपके पास अल्फाबेट्स आ गए एक डब्बे के अंदर, अब उनको इस्तेमाल कैसे करें, जब तक कि उनको अलग अलग अंदाज में जोड़ा नहीं जाएगा, उसको कैसे करेंगे। तो ये पार्ट होता है बाय परफॉर्मिंग एक्शंस, ठीक है। जब एक्शंस परफॉर्म हम लोग करते हैं तो उसमें फिर ये सारे चीजें होती हैं जिसको कि यहाँ पर लिखा गया है। ये बच्चे पहचानना शुरू करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंशिएट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, वर्ड ही गलत है, यहाँ पर डिस्टिंग्विश आएगा। बास हुसैन साहब ने ये करेक्शन मुझे करवाई थी, ये स्लाइड में गलती हो गई मुझसे। डिस्टिंग्विश यानी उसमें वो तफरीक कर सकें, फर्क कर सकें, तमीज कर सकें कि ये लफ्ज आया कि नाउन है या ये वर्ब है, ठीक है, यानी इसम है या फेल है या ये सिफ्त है। तो इसीलिए बच्चों को अल्फाज से मुतारफ कराना, आइडेंटिफाई करवाना उनके लिए जरूरी है। तो जब वो ऑब्जर्व करते हैं क्लास में और उनको प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें फायदा होता है। लेकिन जो सबसे अहम समझने वाली चीज है वो ये है कि ला ताल्लुक अल्फाज जो हम बच्चों को भरमार कर देते हैं ना, अल्फाज अल्फाज मुतजाद, सिंगुलर प्लूरल ऑपोजिट्स, ये वो अल्फाज तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये अल्फाज की लड़ी कैसे बनेगी, जुमला साजी कैसे होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और वो आगे पैराग्राफ्स वगैरह में, स्टोरीज में, रिपोर्ट राइटिंग में, डायलॉग्स में कैसे कन्वर्ट होगा, वहां बच्चे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी आगे बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में। आउटपुट को समझा दूं पहले, यानी पहले ये हाफ जो है ना, इसको मैं समझा दूं कि स्पीकिंग एंड राइटिंग इज द आउटपुट, स्टूडेंट्स वर्जन ऑफ द अंडरस्टूड इनपुट। अगर के स्टूडेंट आपको सही आउटपुट नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि इनपुट और ट्रांजिशन स्टेज में जो है वो सही से उसको सीख नहीं पाया। क्यों, वही बात है कि जब जो अंदर गया नहीं वो बाहर कैसे निकलेगा। और लिखने के ऊपर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि स्पीकिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक दफा वो बोलना शुरू करे, बोलने की उसकी झिझक खत्म हो, तो फिर लिखने में उसको समझ में आएगा। और क्या होता है कि इस साइमल्टेनियसली बहुत से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि लिख तो लेते हैं, बोलने में मार खा जाते हैं। तो उनको फिर प्रैक्टिस में इस तरह से कराती हूँ, ये भी स्ट्रैटेजी है, जिन्होंने स्ट्रैटेजी पूछी थी उसका जवाब है ये कि आप छोटे छोटे कोट्स उनको अगर व्हाट्सएप ग्रुप होता है यूजुअली, तो उसमें दें, या फिर क्लास में, क्लास शुरू करने से पहले एज अ वार्म अप एक कोड दें जो कि एक एक बच्चा जो है उसको रिपीट करे, या पूरी क्लास उसको बार बार रिपीट करे। उससे क्या होता है कि उनकी फ्लुएंसी बेहतर होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती है, और इसी तरह से एक अच्छी चीज उनके जहन में जाती है, बजाय इसके कि जैसे राइटिंग बुक्स में ला ताल्लुक से जुमले होते हैं कि पाकिस्तान इज अ कंट्री इन साउथ एशिया। अब ये एक सादा सा जुमला है, लेकिन इससे उनकी ग्रोथ में वो फायदा नहीं होता कि जो कि आप अपने लर्नर में इवेंचुअली देखना चाहते हैं।
So it's a combination. Input skills are listening and reading. Output skills are speaking and writing. एक सेकंड में यहाँ पर जरा सवालात देख लूं साथ के साथ. तो yes, through simple sentences again. नायाब ने कहा कि through simple sentences उनको सिखाया जाए, but again simple sentences तो हम बचपन से सीख ही रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल तक भी हमारा स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, तो खाली सेंटेंसेस जो हैं वो काफी नहीं है. ठीक है, आगे जो चीज हमारे पास आती है कि इनपुट आर वे ऑफ कॉन्वर्सेशन, यस दैट टू, और उसके बाद फैसिलिटेशन राइटिंग स्कीमा, रिफ्लेक्टिव राइटिंग. ठीक है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग तो तब होगी ना जब आपका स्टूडेंट को इतना आ चुका हो. दिस हैपेंस ड्यू टू आवर ट्यूटोरियल सिस्टम. ठीक है, वो भी होता है. अगेन वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये अच्छी बात है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इफ वी लुक फॉर आंसर्स आउटसाइड के बाहर से कहीं हेल्प आएगी, दैट यूजुअली डज नॉट वर्क. Teacher should motivate students to speak more and more in English. Exactly, तजम्मुल साहब आपने सही कहा. But at the same time, अगर उनकी इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कैसे होगी? फिर स्पीकिंग में जब उनको पहले ही झिझक है, उनको जुमला साजी नहीं आती, तो फिर उनको एग्जैक्टली इनपुट फर्स्ट जरूरी है. ठीक है जी, तो अब तक के ये सवालात आप लोगों के मैंने देख लिए हैं, थोड़ी देर में फिर विजिट करूंगी. सो नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, विच इज कि इनको स्टूडेंट्स को कैसे समझाया जाए, सिर्फ जुमलों में नहीं बल्कि ऐसे मौसर अंदाज में जिसमें कि वो बेहतर से समझ सकें. एंड दैट इज टेक्स्ट. 3 तरह के टेक्स्ट होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, विच इज नरेशन, इंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन. नरेशन हमेशा पास्ट टेंस में होता है. जब भी कोई वाकया हुआ, ठीक है, तो हम उसको माजी के अंदाज में बताते हैं कि ये हुआ था. तो उसके लिए जो पहचान होती है वो ईडी वर्ड से होती है, कि उस टेक्स्ट में ज्यादातर अल्फाज जो हैं वो ईडी में होते हैं. और ये सारी चीजें हमें स्टोरीज के फॉर्म में और पैराग्राफ्स, एसेज के फॉर्म में ज्यादा समझ में आता है. Kindly mute yourself, please. वो जो ये गोल चम्मच नहीं होता मुबशरा, सालन डालने वाला नॉर्मल, please बड़ा mute चम्मच yourself. स्टील वाला. हाँ जी, Kindly mute yourself, मुबशरा. सॉरी. अच्छा जी, तो दूसरा जो नरेशन का ऑपोजिट होगा वो है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. ठीक है, कोई चीज कैसी है उसको हमें उसमें डिस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है. जैसे बादशाही मौस के बारे में है, किसी शहर के बारे में है, किसी मुल्क के बारे में है, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं. यूजुअली साइंस और ज्योग्राफी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस में उसका मैटर होता है. ठीक है, जो स्टोरीज हैं, किसी की सवाने हयात है यानी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, यूजुअली वो पास्ट को मेंशन कर रहे होते हैं, वो पास्ट टेंस में होता है. तीसरी चीज होती है इंस्ट्रक्शन. जब भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी. ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश में वर्ब हमेशा पहले आता है. ठीक है ना, डू दिस, मेक दिस, पिक दिस. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी अब हम आ जाते हैं अपने ट्रांजिशन की तरफ. ठीक है, कि जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होते हैं ट्रांजिशन स्टेज में, कि जो हम उन्हें अल्फाज दे रहे हैं वो उनको सीख सकें. सबसे बेस्ट जो है, पहले तो चीजों के नाम आए ना उनको, वो नाउन्स से आते हैं, फिर कामों के नाम यानी वर्ब्स. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें जो अल्फाज सिखा रहे हैं उनको इस्तेमाल करना भी सिखाएं, या उस टेक्स्ट में से लें जो कि वो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी.
जो उनकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, और उसी में से फिर आप उनको आइडेंटिफाई करवाएं कि अच्छा इसमें से एडजेक्टिव्स कौन से हैं, यानी ये चीज कैसे की उसने, या ये चीज कैसी थी। मिसाल के तौर पे जो लोग टाइपिंग जानते हैं उसमें उन्होंने एक जुमला जरूर लिखा होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है ना। अब ये कहा जा सकता था कि द फॉक्स जंप्ड ओवर द डॉग, ठीक है, इसको मजीद इंटरेस्टिंग बना दिया गया एडजेक्टिव के जरिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड। अब जंप्ड क्विकली भी हो सकता है, जंप क्विकली ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। तो ये एक पूरा जुमला इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब आप बच्चों को अल्फाज सिखा दें और फिर उनको कहें कि अच्छा ये आपके पास अल्फाज हैं, इसको हम किन नाउन्स के साथ लगा सकते हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, इनको हम किन उनके साथ लगा सकते हैं, एक्टिविटीज के साथ, किन वर्ब्स के साथ लगा सकते हैं, तो वो बच्चे के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बजाय इसके कि हम या तो पका पकाया दे दें या ला ताल्लुक जुमले और ला ताल्लुक अल्फाज दें। तभी उनकी जो इनपुट है वो बेहतर होती है और तभी वो बेहतर आउटपुट भी कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर है कि वो जब ड्राफ्ट्स, नोट्स, ऐसे समरी जो भी कुछ करते हैं, डेमोज करते हैं, ठीक है, उसमें फिर उनको आसानी होती है समझने में भी और उसको सीखने में भी, ठीक है, क्योंकि वो समझेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो आउटपुट देंगे। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस प्लीज? कोई सवाल हो तो आप सवाल यहाँ पर लिख दीजिए चैट में। During these lessons, we want the teachers to explain Urdu questions in English and English questions in Urdu. What's the cause of the dilemma? The cause of the dilemma again is that the teachers and the students themselves do not have enough output, enough input to give that output. ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब बच्चे हैं, उनके घर में उर्दू बोली जाती है, उनके यहाँ वो माहौल ही नहीं है जिसमें कि वो प्रैक्टिस करें, तो फिर जाहिर है कि क्या होगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ये बात समझी जाए। और फिर अगेन जब वही रूल नंबर 1 आ जाता है कि जब आपको आइडेंटिफाई करना आता हो कि एग्जैक्ट रूट इशू क्या है, तो फिर जरूरी होता है कि वो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे वो आप उनको बता सकें, ठीक है ना। तो बच्चे को आता नहीं और उससे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आपको इंग्लिश में जवाब दे, तो वो इन इटसेल्फ इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि स्ट्रेस की वजह से वो मजीद सीखने के काबिल नहीं बन पाते और आपको वो सवालात के जवाबात नहीं दे पाते, और फिर वो अवॉइड करते हैं, वो चुप ही रहते हैं, वो मैक्सिमम बोलते हैं यस मिस। उनकी भी जिंदगी आसान और टीचर की भी जिंदगी आसान। स्विचिंग लैंग्वेजेस फॉर दैट्स फाइन। देखो, what I would say is कि switching languages only for the sake of explaining. I had a student जिसको मैं उर्दू इंग्लिश में सिखाती थी और इंग्लिश उर्दू में सिखाती थी। ये दो अलग अलग स्टूडेंट्स थे और ये चीज जो है वो उनके लिए कारगर रही। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स ऑल्सो अबाउट यस। तो जो एक साथ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो उनको समझने की जरूरत है वो इस चार्ट में है जो मैंने अभी शेयर किया था आपके साथ, और इसमें आपको क्लियरली चीजें समझ में आने में आसानी होगी कि बेसिक्स पहले उनको पहले सिखाएं और समझाएं ताकि वो उस चीज को समझ सकें, ठीक है। इज दैट क्लियर अप टिल नाउ? अब आपको मैं दूसरा स्क्रीन दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी इसमें स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, फिर मैं आपका सवाल चेक करती हूँ कि सवाल आपका क्या था। ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है? ये भी IMLS इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ लैंग्वेज स्किल्स का हिस्सा है।
जब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे आप उन्हें जुमलों को इस फॉर्मेट में और वो टेक्स्ट को इस फॉर्मेट में अलग करना सिखाएं। हु डिड व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। इनिशियली हम बच्चों को कहते हैं जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। मुझे खुद कॉलेज लेवल तक इसको सीखने में अच्छी खासी दुश्वारी हुई, लेकिन फिर एक टीचर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, वहीं जब मैं अब्बास साहब के साथ एमटीसी कर रही थी तो वहां पर किसी ने बताया कि बेसिकली इट मींस हु डिड व्हाट। तो के बच्चे को जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लेरिफाई नहीं हो रहा तो आप इस तरह से आसान स्ट्रेटजी से भी समझा सकते हैं कि इस कहानी में क्या हो रहा है या कौन है इस कहानी में। तो इस कहानी में जो है वो हु के अंदर उन सारे अल्फाज को लिखना शुरू कर देगी। इस कहानी में ये है फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास मैं जब अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रही थी तो हम्टी डम्टी की स्टोरी थी रेडियंट वे में। तो उसमें हमने कहा अच्छा पहले तो तस्वीरों से दिखाया और फिर जब कहानी पढ़ी तो उसमें से बताया कि अच्छा और इसमें कौन है और इसमें कौन है। मेरे बच्चे बताते गए और मैं लिखती गई। वो प्री स्कूल में थे, ठीक है, केजी लेवल पे। तो वो मुझे बताते जाते थे और मैंने उसमें जैसे वो जिस सीक्वेंस में भी बता रहे थे, हालांकि वो तरतीब सही नहीं थी, फिर भी मैंने वो अल्फाज लिखे। फिर उनसे पूछा कि अच्छा इसमें फेरी थी, इसने क्या किया, हम्टी डम्टी ने क्या किया, किंग्स हॉर्सेस, what did the king's horses do, and so on. So I wrote all those things down, and then what happened was कि फिर हमने कहा कि अच्छा जुमला मुकम्मल करते हैं। तो when we completed the sentences from who did what, like Humpty Dumpty sat on a wall, all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again, यानी could not put together Humpty Dumpty। सही है। इस तरह से वो पूरे उसने सीक्वेंस बच्चों ने लिखी और फिर अचानक उन्होंने कहा नहीं मामा ये पहले नहीं हुआ था, ये हुआ था। तो क्या होता है कि बच्चे को अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी स्किल्स डेवलप होती हैं और वो क्रिटिकली उसको देख के सुन के समझ के उसको तरतीब बेहतर करना शुरू कर देता है। तो जैसा कि मैंने उसमें पिछले आपको स्लाइड में दिखाया था कि वो आइडेंटिफाई करते हैं फिर डिस्टिंग्विश करते हैं कि नहीं ये ऐसे था कि ऐसे था, और उसके बाद फिर वो जब क्लासिफाई कर चुके होते हैं तो फिर वो उसकी सीक्वेंस या ऑर्डर को दुरुस्त करते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश का। अब दूसरी चीज जो गलती हो जाती है वो इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश में, चाहे वो जहनी तौर पर कर रहे हो या लिख के कर रहे हो, वो ये है कि इंग्लिश की तरतीब बिल्कुल मुख्तलिफ है और उर्दू की तरतीब बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंग्लिश में वर्ब या एक्शन हमेशा बीच में आता है, नो मैटर व्हाट, हमेशा बीच में आता है, ठीक है। लेकिन उर्दू में हमेशा जो भी सीक्वेंस है वो फेल आखिर में आता है, किसने क्या किया। जी, व्हाट इज द हाउ कैन वी हेल्प रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए पहले हमें वो समझने की जरूरत है वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो also and there's a question that grade 6 और 7 की grammatical concepts क्या होने चाहिए, क्या होने आने चाहिए। ये जो बेसिक मैंने आपको बताए हैं ये कम से कम आने चाहिए, तब आपका जो स्टूडेंट है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। Redmi Note 10, I would appreciate if you would rename your name for the session. दूसरा ये कि म्यूट कर लीजिए प्लीज। I would really appreciate if you can mute your mic. ठीक है जी, एडमिन प्लीज लुक इनटू दिस। अच्छा जी, तो क्या होता है कि Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty हु में आ गया, sat वर्ब में आ गया जो कि इरेगुलर वर्ब है। अगेन रेगुलर और इरेगुलर आपको समझाना होगा, अगर आपके पास लेसन प्लान पहले से बना हुआ है तो फिर आप उसको समझा सकेंगे। फिर ऑन द वॉल जो है वो वॉट में आ गया। एक सेकंड,
अच्छा जी, उसके बाद जो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन एंड अगेन। अच्छा जी, अब जो है उर्दू में जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं बच्चे, या क्योंकि उनके जहन में उर्दू में होता है, तो वो क्या करते हैं, वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक होम स्कूलिंग मॉम थी जो कि जब भी जुमला पढ़ रही होती थी तो साथ के साथ हर लफ्ज का तर्जुमा कर रही होती थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है, तो साथ के साथ तर्जुमा करने की बजाय बेहतर है कि पहले उनको आप अल्फाज के तर्जुमे बता दें और फिर उसको रब्त के साथ समझना उसको आसान हो जाए। How is it possible if the child belongs to Pashto family can understand and communicate in English language? What strategies would you recommend to deal with such kids who face language and speaking difficulties? देखिए, जाहिर है कि अगर टीचर को पश्तो लैंग्वेज नहीं आती है तो डेफिनेटली उसको दोनों को ही डिफिकल्टी होगी, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज उसको सिखा रहे हैं तो फिर then you can communicate in English or use at least pictures. उसमें ये भी होता है कि अगर क्लास में और बच्चे हों अगर पश्तो लैंग्वेज बोलने वाले, तो फिर आप उनको बडीज बना सकते हैं, बडी के तौर पे वो एक दूसरे को हेल्प आउट करें। ठीक है, तो आप जितना इनकरेज करेंगे कि वो ट्रांसलेट करें, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से तो नहीं सीख के आया ना लैंग्वेज। हाँ, उसे बोलना चाहिए, इंग्लिश की अहमियत है, सब कुछ सही है, लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है कि वो किस तरह से उसको करेगा। सो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल की मिसाल इंग्लिश में हो गई, अब उसको उर्दू में करते हैं। ठीक है, तो किसने या कौन के बारे में बात होगी ना, इसम जो है वो या तो होगा किसने या फिर होगा कौन। ठीक है, तो कौन बैठा था, हम्टी डम्टी बैठा था। बैठा था क्या हुआ, फेल हो गया, जो कि आखिर में आया। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी दीवार पे बैठा था। फिर बादशाह के घोड़े और बादशाह के आदमी उसको दुरुस्त नहीं कर सके, उसको नहीं जोड़ सके। हम्टी डम्टी दीवार पे से गिर गया। ठीक है, तो गिर गया, जोड़ नहीं सके, बैठा था, ये सारे के सारे फेल हैं और जो कि जुमले के आखिर में आए। ठीक है, एक और स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करती थी वो ये था कि जो बच्चों की मैथ्स की कॉपी होती है ना, मोटे जो 1 इंच वाले स्क्वायर्स वाली, उसमें मैं इंग्लिश वाला जुमला लिखती थी, हर लफ्ज को अलग अलग, और फिर उसके नीचे उर्दू का जुमला लिखती थी। और फिर जो है वो बच्चा जो है उसको सीक्वेंस में करने में कामयाब हो जाता था। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? किसी को और कोई सवालात हैं किसी के? Okay, can you please repeat this point? Okay, sure. So when translating, it is important to know that English and Urdu have different sequences. In English, the verb always comes in the middle. So the easier way to teach a student who is unable to comprehend subject, verb, object, although it's obvious, but ये ला ताल्लुक से अल्फाज लगते हैं। इसमें जो चीज हम कर सकते हैं वो इस तरह के अल्फाज देते कि हु डिड व्हाट, किसने क्या किया, तो वो फिर सोच पाता है बेहतर तरीके से कि ओके, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, व्हाट में आ गया अ ग्रेट फॉल। तो ये आपका सीक्वेंस इस तरह से हो जाता है। तो अगर बड़े बच्चे हैं ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स, तो वो वर्ब्स को आइडेंटिफाई करके लिख पाते हैं। ठीक है, अगर कि वो छोटे बच्चे हैं तो बेहतर सीक्वेंस ये रहती है कि आप उनको हु बताएं कि हु इज इन दिस स्टोरी, हु डिड दिस। तो इस तरह से वो फिर पूरी सीक्वेंस लिखते हैं और फिर उस जुमले को मुकम्मल करना सीखते हैं। तो इन दिस वे दे लर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल। ठीक है, ये सारी नरेशन की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह से और जब उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो फिर वो उन्हें समझने की ये जरूरत है कि
किसने क्या किया? तो हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा था, हम्टी डम्टी गिर गया था, अ, बादशाह के आदमी उसे नहीं जोड़ सके। तो जितने भी फेल हैं यानी वर्ड्स हैं वो सारे आखिर में आ रहे हैं। तो हम इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ मिजाज के अल्फाज हैं, दो मुख्तलिफ तरह के सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो अब जो इसमें देखने की चीज होती है कि आया कि हम इस हमारा बच्चा इस बात को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट क्लियर टू देम। सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि क्या चीज है, ठीक है ना। एक और अंदाज इसका देखने का है, जो अभी स्लाइड चेंज होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है और कोशिश करती हूँ मैं कि ये बड़ी दिख जाए आपको। अभी लोड हो रहा है। इसमें मैंने करिकुलम को डिवाइड किया है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में। एक सेकेंड जी, एक मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, माय मदर वाज कॉलिंग। अच्छा जी, तो ये जो इसके अंदर एक्टिविटीज हैं, ये सिर्फ एज अ डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। आपको इसकी कॉपी चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली समझने के लिए है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एक ही तरह की चीज को आप दे सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम को बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इनिशियली आप नाउन्स और वर्ब्स से शुरू करें, फिर आप एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के ऊपर आए, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, और वो अपने प्रॉपर टेक्स्ट में से लें। जो ग्रामर की बुक है उसमें से फायदा नहीं होता, हो रहा होता तो आज हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं वो रो नहीं रहे होते। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली दिस इज अनदर वे टू हेल्प योर चिल्ड्रन बिल्ड अप देयर वोकेबुलरीज। अपने जो उनको मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह से लिख सकते हैं। स्टोरी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, उसके क्या एडजेक्टिव्स हैं, कौन से नाउन्स हैं उनके क्या एडजेक्टिव्स हैं, कौन से वर्ब्स हैं उनके कौन किस तरह से एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं। अगर कोई जेंडर की बात हो रही है तो उस जेंडर के लिए कौन से एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मसलन कि खवातीन के लिए ब्यूटीफुल, प्रिटी इस्तेमाल होता है लेकिन जेंट्स के लिए नहीं होता। ठीक है, फॉर मेल्स द एडजेक्टिव इज हैंडसम। ठीक है, तो ये चीजें भी आप तभी सिखा सकेंगे जब आप खुद उसको प्रॉपरली डिसाइफर करना बता पाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर अप टिल नाउ? Again, the easiest way to make them a good writer is to help them practice and start with the easiest task के कम से कम 3 statements वो लिख सकें तो उनके लिए ज्यादा आसान होता है, और फिर वहां से आप बिल्डअप करें। यानी जाहिर है कि बड़ी क्लास में आप 3 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं लर्नर्स के हिसाब से कह रही हूँ कि जो बिलो एवरेज लर्नर्स हैं आपके, उनके लिए आपको जरूरी होगा कि आप उनको वो समझना समझा सकें कि वो किस तरह से उस चीज को
बेहतर तौर पर कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। उसके अलावा ये रूब्रिक्स हैं जो कि आप गूगल से कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेना जरूरी नहीं है। गूगल पे आप रूब्रिक्स टाइप करेंगे तो आराम से आपको ये चीज मिल जाएगी और आप अपने स्टूडेंट को जज भी बेहतर तौर पे कर सकेंगे। नॉट लाइक लेबलिंग देम कि ये तो इसको आता ही नहीं है, बल्कि उसके पेरेंट को ये कहें कि जी इसमें पोटेंशियल है, ये बेहतर कर सकता है और इस तरह से कर सकता है। क्योंकि अगेन पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करना कि वो कॉन्फिडेंस दिलाएं, वो कहते हैं कि जी पेरेंट्स कहते हैं कॉन्फिडेंस पैदा करो। भाई कॉन्फिडेंस कोई पौधा थोड़ी है जो अंदर से निकल आएगा, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। तो जब आप उसको स्टूडेंट को स्ट्रेटजीज देते हैं, उसको आप समझा पाते हैं कि उस क्या चीज उसकी है, आइडेंटिफाई जब होती है, तभी आप उसको बेहतर तौर पर करवा पाएंगे कि उसने करना क्या है। ठीक है, any questions, any further questions that you would have? IMLS chart again, yes, sure. मैं इसको दोबारा से शेयर कर देती हूँ। somehow ये इस पे नहीं हो रहा है, so I'll get ये IMLS का चार्ट है। ठीक है, इसमें करेक्शन कर दीजिएगा, मैंने डिफरेंशिएट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डिफरेंशिएट नहीं है, डिस्टिंग्विश है, तो ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इससे फिर आपको समझने में आसानी होगी। बाकी ये है कि मजीद अगर आप लोग इस सिलसिले में कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे अच्छा जी, ठीक है, तो ये चार्ट है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, so if you have any questions, I'll be silent for a while and you can write down in the chat your questions. Thank you. Okay, so good questions. What to do if the student gives no response? Nice. Again, why is the student not giving response? ये बात समझने की जरूरत है। ठीक है, तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ना देने की वजह भी यह है कि हमें पता करने की जरूरत है कि आखिर को वो क्या वजह है, क्यों वो मोटिवेट नहीं हो रहा बोलने में। और ज्यादातर तो ये होता है कि या तो घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल होता है या बहुत ही लड्डू माहौल होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा उसमें प्यार से पुचकार के रखा जा रहा होता है और जिसकी वजह से बच्चा नहीं कर पाता। तो a little bit of student time, student teacher time would be really appreciated by the student as well. ठीक है, कि जिसमें आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करें ऑन अ पर्सनल बेसिस। अब जाहिर है कि जब 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है उसको करना कि आप हर स्टूडेंट के साथ कैसे मिलें। तो आप ग्रुप्स में कर लें, 3-4 का ग्रुप बना लें। हफ्ते में 5 दिन स्कूल होता है, हर ब्रेक में एक
10 मिनट का टाइम अगर ऐसा हो कि जिसमें आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करें, तो वो फिर आप उसमें बेहतर तौर पे समझ पाएंगे कि क्या चीज उन्हें चाहिए है एंड व्हाट इज इट दैट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज इट दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद। ठीक है, वन टू वन एज अ ग्रुप। ठीक है, तो व्हाट इफ द स्टूडेंट्स पेरेंट डोंट वांट टू गिव द सपोर्ट टू टीचर एट होम? ऑफ कोर्स ये तो होता है। It's just like I think motivation and activities will be helpful to those students. बिल्कुल सही है। और again, you need to know that you are on your own. These are true that बाज़ औक़ात वो पेरेंट्स खुद को नहीं आ रहा होता ना, तो वो जब ऑनेस्टली एडमिट कर रहे हैं, तो फिर जस्ट बिकॉज दे आर पेरेंट्स अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करें तो इट्स नॉट फेयर। मैं आपको अपना बताती हूँ कि जब मेरी बेटी 4 साल की थी और मुझे स्कूल में एडमिट करना था, तो मैंने अपने तौर पे, मुझे शौक बहुत था, तो फ्लैश कार्ड्स वगैरह अल्फाबेट्स के बना के, और जैसे मैंने सीखा था उसको मैंने सिखाया। मैंने कहा ठीक है, तो प्री स्कूल का एडमिशन, इसमें कौन सा टेस्ट होगा? बट शी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज उसको करना ही नहीं आया, बिकॉज आई वॉज नॉट एजुकेटेड इनफ ये कि बैचलर्स तो मैंने किया हुआ था, लेकिन मुझे अपडेटेड स्ट्रैटेजीज नहीं मालूम थी टीचिंग की। और फिर पेरेंट्स उस तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसा कि उन्होंने 10 साल पहले मिनिमम किया होता है, क्योंकि जब तक उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो 5 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं। ठीक है ना? या फिर ये है कि उनके ऊपर जोर जबरदस्ती होती है कि वो प्री स्कूल में और पता नहीं कहाँ कहाँ वो डाले जाते हैं, पैम्पर में आ रहे होते हैं बच्चे दूध की बोतल के साथ, विच इज लाइक टोटली रॉन्ग। बहुत से स्कूलों में तो बच्चा जो है वो अभी माँ प्रेग्नेंट भी नहीं होती है, या अर्ली प्रेगनेंसी में होती है, तो कहा जाता है पेरेंट को कि जी आप लेट हो गए। तो जाहिर है कि जब पेरेंट्स अपडेटेड नहीं हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे, कैसे सिखाएंगे? तो वो सपोर्ट घर में नहीं दे सकते। सो इन दैट केस अगर आप थोड़ा सा खुद आगे बढ़ के उनको कनेक्ट करा दें ऐसे ग्रुप्स के साथ, जैसे मेरे ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल एंथुसियास्ट का ग्रुप है, उसका आप पार्ट बन सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप ओनली ग्रुप नंबर है, इसके ऊपर आप मिस्ड कॉल दे दीजिए अपना नाम के साथ, तो आप जो फीमेल्स का अलग ग्रुप है, मेल्स का के अलग ग्रुप्स हैं मेरे, तो उसमें आपको चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी? So, can you please tell one or two activities to teach language in classroom for teachers? Activities आपने अगर ये स्क्रीनशॉट्स निकाली हैं, तो इसमें आपको बड़ी आसानी से कई एक्टिविटीज निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको तसल्ली से देखिएगा, वरना फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो कॉपी कर लीजिए, उसके ऊपर मिस्ड कॉल दे दीजिए, तो आपको मजीद जो सेशंस हैं वो आप मेरे साथ ले सकेंगे। इंडिविजुअल सेशंस भी देती हूँ, वर्कशॉप्स एक एक हफ्ते के होते हैं, या ऑन गोइंग बेसिस पे अगर आप करना चाहें तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन हैव। And I provide them at 50% off. Anyone who is present on this session today can get this option. ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। ये चीज आप देखें कि क्या आप करना चाहते हैं और किस तरह से आप ये सारी चीजें लाइब्रेरी से करवा। ठीक है जी? So now we have only 6 minutes. If there are any other questions, तो आप क्वेश्चन अपने पोस्ट कर दीजिए। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अटेंडेंस यहाँ पर रही है। We had about more than 60 people. वहीया का जनाब।
तो नंबर अब आप लोगों के पास है मेरा, आप लोग राब्ता करेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा. सेशन वाज रिकॉर्डेड. The 50% off is for the sessions that I give. तो consultancy में देती हूँ, उसके अलावा workshops, individual sessions and ongoing basis के ऊपर जो sessions होते हैं वो मैं करवाती हूँ. So if anyone is interested in knowing more, then obviously you can contact me and avail that opportunity. क्योंकि I understand teachers और खास तौर से आजकल के टाइम में पेरेंट्स भी बहुत चैलेंज्ड हैं. तो anyone who comes with your reference, अगर आप screenshots आपने लिए हैं, आप उसका रेफरेंस देंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि you were at this session. So anyone who is in this session is eligible to get a 50% off on whatever services I give in the terms of education. And I'm also an NLP based life coach. So if a student or a parent needs support in that regard, आपके रेफरेंस से जो भी आएगा, that they would also get a 50% off. ठीक है? Yes. Could I speak in English? Yes, I can speak in English. I would once again share my screen so that you can copy down my number. And if you have any questions regarding this session, the recording will be uploaded on YouTube as soon as it converts. So this entire session would be available on my YouTube channel. The name of the channel is Learn Easily with Shirinity. So if you want your students to gain confidence, if you want to feel better about teaching the language and giving your students easier strategies, these are some of the ways that I have already mentioned, and you can learn more about them. I'm a lifetime member of Spelt, Alhamdulillah, and I've been participating at Spelt International conferences number of times. So that is also a possibility for us to connect, but then that happens in October and November. So if you want to connect before that, here is my WhatsApp number. And you can give me a missed call, or you can connect, give the reference of a screenshot so that I know for sure that you have been in this workshop with me. Thank you so much. Thank you for taking out time. Thank you for being here. Over to you, admin. On the behalf of Spelt, I thank you, Ms. Shireen. Thank you so much for this wonderful, engaging session and informative also. Thank you so much for inviting. Thank you.